جس نے آنکھ بنائی ہے کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تربیت کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے، وہ باطل ہے۔ اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تربیت کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ افضل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راستے اس کی پیروی کرے گا۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بستی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میرے جان کو زیادہ کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تب سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی کاٹتا ہے؟ وہ شادی کی جان لینے کو کھڑے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری ان ہی پر لائے گا اور ان ہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ اور ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب اہلوں پر شاہ عظیم۔ زمین کے گراؤ اس کے قبضہ میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہے، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکے اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں جیسا مسواک کے دن بیابان میں دیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے تجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بہلا رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ آمین۔ Praise God. آئیے ہم سب اپنے گھروں پر کھڑے ہوئے۔ Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
آئیے ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند پاک خدا کی اس حضوری، اس کے مسا، اس کا زور جو ہماری زندگیوں پر آ جائے، آئیے اس کی برکت کو لینے کے لیے اپنے آپ کو خداوند پاک خدا کے حضور میں اس کے سپرد کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے آوازوں کو بلند کرتے ہوئے خداوند پاک خدا کے واحد ہونے کا اقرار کیجیے۔ وہ جو پاکیزگی کا خدا ہے، وہ جو قوموں کا خدا ہے، وہ جو امتوں کا خدا ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، وہ جو آپ کا اور میرا خدا ہے، وہ جو آپ کے اور میرے جاننے سے پہلے، ماننے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ آئیے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، خداوند کا پاک روح ہر ایک جان پر آ چکا ہے، اس کی تسلی، اس کی تشفی، اس کا اطمینان اب ہر ایک جان کو زور دینے کو ہے۔ آئیے یہوہ کے حضور میں جھکتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ آئیے آوازوں کو بلند کیجئے، سبھی متفق ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ بھائی اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، بہنیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، بچے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، خداوند کا اقرار کیجئے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ ہاللیلویہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پریز گاڈ۔ آئیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے خداوند کی اس بارگاہ میں، اس کے حضور میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکتے ہوئے، منتوں کے ساتھ اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے خداوند کے حضور میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیرا پاک روح، خداوند تیری تمجید، خداوند تیری گلوری، خداوند تیرا مسا، خداوند تیرا زور، خداوند آج زندگیوں کو بحال کرتا جائے۔ خداوند تیرا پاک روح پانی کے ریلوں کی طرح آج تیرے لوگوں کو بحال کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے۔ پریز گاڈ۔ آئیے دعا مانگی، سبھی دعا مانگی۔ بھائی اپنی آواز کو بلند کر کے دعا مانگی، یسوع مسیح کے نام سے مانگیے، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے پر دیتا ہے۔ اس نے کہا مانگو تو میں تمہیں بادشاہی انعام میں دے دوں گا۔ آئیے مانگتے جائیے اور خداوند سے اس کی برکت کو لیتے جائیے۔ آج خدا کا پاک روح آپ کے ٹیڑھے میرے راستوں کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی اور میری نجات کے لیے اس جگہ پر آن پہنچا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خداوند خالق حقیقی کے سامنے گھٹنے ٹیکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا نام مانگتے، خداوند آج صبح تیرے پاک روح کے خداوند مسا کو مانگ لے، خداوند تیری بندگی، تیرے بزرگ نام کو مانگ لیتے۔ خداوند آج تاریکی کو یسوع مسیح کے نام سے ان جانوں سے دور کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ Let the fire, let the fire, hallelujah, hallelujah. Let the holy fire, hallelujah. Praise Jesus, praise Jesus. Praise God. دعا مانگتے رہیے، خداوند کا پاک روح آپ کو زور دے چکا ہے، خداوند کا پاک روح آپ کی جانوں کو چھو چکا ہے، خداوند نے آپ کی آواز کو سننے کے لیے اپنا کام لگا ہے۔ آئیے اب اپنے ایمان سے خداوند سے مانگتے جائیے۔ ہاللیلویہ۔ اس آواز کو بلند، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. सब दुआ कीजिए। आए हम सभी की तरह मुक्तविक होते हुए खुदा के घर में आ चुके हैं, तो अपने लबों को खोले, अपने लबों के पहले फल खुदा की हजूर में रख दीजिए, अपने दिलों को चाक कर लीजिए, क्योंकि हम खुदा के हजूर में आ चुके हैं। बढ़ते जाइए, अपने लबों को खोलिए, खुदा की ब्लेसिंग से माला माल हो जाएंगे। मांगिए उस खुदा से जो देने की कुदरत रखता है। आए हम मुक्तविक होते हुए खुदा के हजूर में आए हैं, उसके हजूर में एक दिल के साथ आए हैं, तो खुदा उससे मिन्नत कर लीजिए। आई पाक खुदावंद, आई रबुल फाज, मेरे खुदावंद, बड़ी इंतज़ारी के साथ, बड़ी मिन्नत के साथ, पाक दिल होते हुए, पाक नियत के साथ मेरे खुदावंद तेरे घर में उतर चुके हैं। तो मेरे खुदावंद अपने दिलों में, अपने लबों के लिए मेरे खुदावंद तुझे वेलकम करते हैं। आज मेरे खुदावंद हम घटे और तू बढ़े। मेरे खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस नई सुबह के लिए, अपनी जानों के लिए कि मेरे खुदावंद तूने हमें महफूज रखा है। मेरे खुदावंद तू जो हक ताला है, हम इसी हक ताला के पर्दा के नीचे हमेशा महफूज रहते रब्बुल वाज। मेरे खुदावंद बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का ये दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है। मेरे खुदावंद अपनी जानों को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। आज तेरे खादिमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटों और बेटियों के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। इस बारगाह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद महफूज रखता है तू हमारी जानों को, और मेरे खुदावंद कोरोना जैसी वबाओं से महफूज है, मुश्किलात से महफूज है। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बरकत के लिए, तेरी नेमतों के लिए। प्यारे खुदावंद मेरा बर्बाद, तो हमारी सलस्ती जानों को सेव करता है और भूखी जानों को माला माल करता है अपनी नेमतों से। प्यारे खुदावंद रब्बुल वाज पूरे माहौल को आगे हैंड ओवर कर देते हैं और तेरे खादिमीन को तेरे खुदावंद से मिन्नत करते हैं और ज्यादा ब्लेसफुल कर और ज्यादा फ्रूटफुल कर। तेरे खुदावंद तेरी नेमते, तेरे नूर के फल हमारे अंदर रहे, तो मेरे खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस का बरकत का बाइस बने। रब्बुल वाज पूरे माहौल को आपके हैंड ओवर कर देते हैं। मेरे खुदावंद आज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अपनी से अपनी जानों को प्यार करते हैं, अपने दिलों को चाह करते हैं। और मेरे खुदावंद ताकि तेरे खून और गोश्त में जब शामिल हो तो मेरे खुदावंद तमाम तरह के बंधन जुए टूटते चले जाए और तेरे लोग इसी तरह हमेशा तेरे ईमानदार, तेरे वफादार रहे। एक बार फिर तेरे खुदावंद सारे माहौल को आपके हैंड ओवर कर देते हैं। यीशु मसीह के कातिल नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे आमीन। आमीन। सभी तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। अपने खुदा तेरा शुक्र देता है। हालेलुया। आप सबों को अल्लाह के द्वार बहुत मुबारक हो। खुदा के कलाम में क्या खूब लिखा है, एहसास को खुदा में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। स्वागत में खुदा की तारीफ गाएंगे, उसके जोर में पढ़ेंगे, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते चले जाएंगे। हालेलुया। क्या सुनते हैं? तो बोलिए हालेलुया।
रहा है। हमारा खुदावंद हमें जोर बख्शता है ताकि हम उसकी कुव्वत कर सके। हमारी जुबान को वो ताकत बख्शता है, तकवीयत बख्शता है ताकि हम अपनी जुबान से उस खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। आमीन। दुआएं आंखें बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, मुकम्मल तौर से सब अपने सिर को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करने में रहनुमाई बेटी निशा पर पेश करेंगे। के बाद सलामती के शजाके खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। जो कमजोर है बाप तो उनका जोर है बाप उस्मानी, बंदों को ख्वाबों की मानी तो उन्हें का हौसला अता फरमाता है बाप उस्मानी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं बाप कि तूने हमें मौका दिया बाप कि आज के इस मुबारक दिन में अब आप तेरे घर में आए, तेरे नाम की प्रेस्टीज करें और तेरे आगे झुके, तेरे नाम को सजदा करें बाप उस्मानी। शुक्र अदा करते हैं शुक्र भाइयों के लिए बाप जिन्हें सलामती से अपने घर में लेकर आए। बाप अपने बेटों को इसी तरह उनके गलों को मसा बना ताकि वो रूह और सच्चाई से तेरे नाम की प्रस्तुत करे और दुनिया के कोने कोने में जाकर तेरे नाम की तमजीद करे। बाप आसमानी दुआ को हुआ बाप तेरे खादिम तेरे ममसू के लिए और तेरी कलीसिया के लिए, जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए बाप तेरे नाम से इस घर की बढ़ोतरी मांगते हैं बाप आसमानी। बाप इस घर को अपने बंदा को ज्यादा से ज्यादा अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे बाप, क्योंकि तेरा खादिम तेरी आंख की पुतली है बाप, अपने खादिम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाए बाप आसमानी ताकि वो तेरे नाम की मुनादी कर सके बाप आसमानी। दुआ को इस चर्च की कलीसिया के लिए बाप, इस घराने के लिए, इस खानदान के लिए बाप, इस घर को बड़ी बरकत अता फरमा है बाप। इस घर की एक ईंट तेरे लहू से जुड़ी हुई है बाप। जिस तरह तू हमारे शुरू से रहनुमा रहा है बाप, तो आखिर तक हमारा रहनुमा रहना है बाप, और हम तेरे नाम से बढ़ते चले जाए बाप आसमानी। बाप तू हमें जोर देता है बाप, जब हम कमजोर होते हैं तू हमें ताकत मुहैया करता है बाप, तू हमारी जंग को भी लड़ता है बाप, तू हमारे जोर बन जाता है, तू हमारी उंगलियों में लड़ना सिखाता है बाप आसमानी। बाप एक जान के लिए जो तेरी हजूरी में है बाप, उनके लिए सलामती, हिफाजत, बरकतें मांगती है बाप आसमानी, उनके घरानों के लिए बरकतें और सलामती मांगती है बाप आसमानी। जो भी बीमारी है, तकलीफ है बाप, वो तेरे नाम पर तवक्कुल करके उस बीमारी से शिफा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं बाप। जो तेरे आसरा पर चलते हैं, जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं बाप, उन्हें रास्तों की फिक्र नहीं होती है बाप, क्योंकि तू उन्हें चलना सिखाता है बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, तेरे आगे झुकती, तुझी को सजदा करती हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ बाप, तो तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ मांगते थे पैर पर यीशु के नाम से, आमीन। मिलके बोलेंगे आमीन। कितने छात्र खुदा की प्रतीक्षा में आगे बढ़े, अपने आप से लगाइए, बोले हालेलुया। आप मिलकर खुदा की प्रतीक्षा करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि हमारा खुदा शौहरत, इज्जत, दौलत और बुजुर्गी के लायक है। प्रेज जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इस मसा उसके जोर के लिए रूह पाक जो चट्टानों को हिला देता है, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एडर प्रवेश साहब के साथ मिलकर खुदा उनके इस मसा इस जोर के लिए उसकी शुक्रगुजारी बयान करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज जीसस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदा, तुझे सजदा, तुझे सलाम करते हैं। हालेलुया। तू अज़मत वाला, शोहरत वाला, इज्जत वाला। ऐ बात हमारी हमेशा तेरे आगे झुके रहें और तेरे घर से मेरे खुदा मांगते रहें, क्योंकि खुदा तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे खुदावन, तूने कहा ढूंढोगे पाओगे, ठुकराओगे मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। ऐ खुदा, तुम्हें हमारे लिए अपने दरवाजे खोल के रखना है, लेकिन खुदावन हमारे मांगने में कमी आ जाती है। फिर भी मेरे खुदा को बड़ा रहम है जो हम जैसे गुनहगारों पर रहम करता है। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार इस वक्त, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए, आज के दिन के लिए। मेरे खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, यही तेरी मर्जी थी। तेरे बेटियों, तेरे बेटे खुदा तेरे हजूर आए तेरे घर में, और खुदावन तेरे नाम की इज्जत को जला दे। ऐ मेरे बादशाह, अपना रहम, अपना फजल कीजिए। आज सब एक एक बेटे को छुई और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। तेरा पाक रूह हम सब पर जुम्मश करे। ऐ मेरे खुदावन, हम पर रहम कर, अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए, जो कितने कहते हैं कि बातों का सच्चा खुदा इस जगह मौजूद है। प्रेज़ गॉड। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की मुक़द्दस नाम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आइए, बातों के सच्चे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावंद के नाम को खुदावंद के नाम को पुकारिए, क्योंकि वो खुदावंद हमारी सुनता है। उसके दूर दुआ करेंगे, अपनी जुबान को खोलिए और खुदावंद के दूर दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसका पर उसका बचा उसका जोर उसके आंखें के ऊपर छा चुकी है। वो अपने कुदरत से यहाँ पर मौजूद है, वो अपने लोगों में आज काम करता है। सब हाथों को बुलंद कीजिए और उसको पुकारिए, क्योंकि वो आज आपकी घोर पर काम लगाएगा। सब भाई सब अपने हाथों को खोल लीजिए, उठाइए अपने हाथों को और पुकारिए उस खुदावंद को, क्योंकि वो सुनता है। हालेलुया। अपने हाथों को खुदावंद के हुजूर में खोलेंगे, जेबों में से निकालिए, अपने हाथों को खोलिए और खोलिए। यीशु मसीह ने सलीब पर आपके लिए, पूरी दुनिया के जहान के गुनाहों के लिए अपने हाथों में कील झुकवाए। सभी अपने हाथों को खोले और यीशु मसीह की तरह पाप को पुकारे, क्योंकि जब यीशु पुकारता तो खुदा जवाब देता है। और यीशु ने ये हक बख्शा है कि आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हो। हालेलुया। अभी भी बंद हाथ है, खोले अपने हाथों को, आपके हाथ छुड़े ना रहे, खोले अपने हाथों को। आज उदास शर्माइए कि आपके साथ वाला आपके साथ वाली क्या कहेगी, बल्कि आपको पुकारिए। आज ये सोचिए कि खुदा क्या कहेगा। तुम निर्वाण है, तू कादिर है, तू जलाल का बादशाह, तू मेहरबान है। सब
के लिए दुआ करेंगे। आसमानी मेहरबान जलाली खुदा, तू जो बड़ा पाक है, पवित्र है, तेरी इस हजूरी के लिए, तेरे मस्जिद के लिए खुदावंद जो तूने अपने लोगों में दिखाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद आज जितने जाने तेरे कलाम की भूख और प्यास रखते हुए तेरे घर में आए हैं खुदावंद, उनको आज से रोशन कीजिएगा। खुदावंद हर तरह की नेगेटिव बातें यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदावंद तेरे कलाम में से हम खुदावंद पॉजिटिव चीजों को रिसीव कर सके खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम हमें खुदावंद होकर बर्फ के माने सफेद कर देता है, तेरा कलाम हमें जिंदगी दे देता है, तेरा कलाम हमें राहत बख्शता है, तेरा कलाम हमें हर मुश्किल से परेशानी से रास्ता निकलने का रास्ता बताता है। आज खुदावंद हम वफादारी के साथ तेरे साथ चले, ना कि किसी और के साथ चला। खुदावंद हमें अपने कलाम में से सिखा कि हमें किस तरह तेरे हुजूर में आना है। खुदावंद हर तरीका से, हर लिहाज से खुदावंद हम तेरे कलाम में से सीखना चाहते हैं, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी है, और जब जिंदगी को सीखता है वो जिंदगी पसंद करता है। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे कलाम में से तेरे जिंदगी जीना सीख सके खुदावंद, खुदावंद तेरे नक्शे कदम पर चलना सीख सके खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि जिस तरह आपने अपनी तबई जिंदगी गुजारी खुदावंद बेशक वो मुश्किलों से भरी थी, लेकिन खुदावंद आपको ये सर्व बख्शा गया कि आप जिंदा आसमान पर उठाए गए, अपने मौत और कब्र पर फतह पाने खुदावंद। आज ये सुनासी हमें जोर बख्शिए, ताकत बख्शिए, ताकि खुदावंद हम दुनियादारी की रंगीनियों में ना खोए, बल्कि तेरे कलाम की गहराइयों में खो जाए खुदावंद। खुदावंद जब तेरा कलाम हमारी जिंदगी में खुले तो उसके गहरे भेदों में हम खो जाए खुदावंद, हम पाक रूह के उस फ्लो में, उस दरिया में डूब जाए खुदावंद जिसमें हमारी जिंदगी है। यीशु नासरी फजल कर दे, रहम कर दे, दर्श कर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम में बढ़े, खुदावंद तेरे नाम को प्रमोट करें, तेरे नाम की मदद सराई, तेरे नाम की जय जयकार करें। खुदावंद हमें बरकत दीजिए, ताकि हम आपके नाम में इसी तरह कायम रह सके और हमेशा वफादारी के साथ तेरे कलाम को सीखें, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सभी खुशी करें। आप सब लोग की भरपूर तारीफ को खुदा के कलाम को हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत बुजुर्ग जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज हम एक बार फिर खुदावंद की पाक हुजूरी में उसके नाम को लेने के लिए तैयार हैं। हमने एक सीरीज शुरू की थी और इसको आगे लेकर भी हम चल रहे हैं, और वो क्या है? यस, थैंक यू, रोजा के बारे में। तो ये आज फिर मैंने कोशिश की है कि हम मिलकर रोजा के बारे में और मसीहत के बारे में और जरा डिटेल से और गहराई से सीख सके। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से हमारी मरकजी आयत वही है, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब और 16, 17 और 18 आयत। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती 6 बाब 16, 17 और 18 आयत। कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते
تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکی ہے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جو کلام مقدس کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ کسی شخص نے کیا ہی خوب روزے کی تعریف کی ہے اور اس نے یہ کہا وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنی روح، اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ دے اور قرآن کی پاک حضوری میں جھک جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ پورے بائبل میں 35 ایسے واقعات ہیں جہاں پر روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے یا روزہ رکھا گیا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں جو روزے کا ذکر ہے وہ 34 مرتبہ ملتا ہے اور نئے عہد نامہ میں 20 مرتبہ ملتا ہے۔ مسیح کلیسیا کے اندر روزے کو لے کر مختلف روایات گردش کرتی ہیں، اور میں نے بھی مناسب جانا کہ روزہ کے متعلق بائبل کے موقف کو کنگ جیسس فیملی اور مختلف کلیسیاؤں تک اس میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اور پھر روزے کی ابتدا اور اس کے پس منظر پر بھی نظر ڈال سکیں۔ پہلی بات، روزہ لفظ عربی اور عبرانی میں صوم یا شوم، اس کا جو مطلب ہے یہ کہلاتا ہے، اور ان دنوں کو ماہ صیام بھی کہتے ہیں جو لفظ صوم کے اندر سے ماخوذ ہوا ہے۔ اور یونانی زبان میں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، لیس اتھیو۔ ذرا لکھ لیں اس بات کو تاکہ آپ کو اس کی صحیح جانکاری مل سکے۔ لیس استھیو، لیس کا مطلب ہے نہیں اور اتھیو کا مطلب ہے کھانا، مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ لیکن بعض اوقات کلیسیاؤں میں اور غیر قوم میں بھی یہ سوال بڑی کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں اور کیا جاتا ہے کہ جی آگ پر پکی ہوئی چیز آپ نے نہیں کھانی، باقی جو مشروبات ہیں، جو جوسز ہیں وہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ بائبل کے بالکل خلاف ہے اور مترادف ہے۔ اس کا بائبل سے یا بائبل کی تعلیم سے یا پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو خدا نے ہمیں ایسا کوئی بھی روزہ نہیں دیا۔ یہ سارے لوجک جو ہے یہ غیر اقوام کی ہیں، لیکن ان روزوں کو ایک اور لفظ سے بھی پکارا جاتا ہے جس کو لینٹ سیزن بھی کہتے ہیں۔ اب یہ لینٹ کیا ہے؟ ہم اس سیزن کو انگلش میں لینٹ کیوں کہتے ہیں، اس کی ہسٹری کیا بیان کرتی ہے، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لینٹ جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ لیگٹن سے واقف ہے، یعنی لیگٹن کے اندر سے انگلش زبان کا لفظ جو لینٹ ہے وہ باہر آیا ہے۔ اور جب لاطینی کیلنڈر کو دیکھیں، جس طرح ہمارے انگریزی کیلنڈر کے اندر جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی اور ٹوٹل 12 مہینے آتے ہیں، اسی طرح لاطینی زبان کے اندر لیگٹن یعنی جو تیسرا ہمارا مارچ کا مہینہ ہے، یہ لاطینی کے اندر لیگٹن مہینہ ہے، یعنی لاطینی میں اس کو لیگٹن کہتے ہیں، اور اس کو
मार्च का महीना भी कहते हैं, इसको लेंगिटन भी कहते हैं, इसको मौसम बहार भी कहते हैं और इसको लेंट भी कहते हैं। एक लफ्ज के अंदर से इतने सारे लफ्ज हमें सुनने को मिलते हैं। रोज़ों के आयाम ज्यादातर आप सब जानते हैं कि ये मार्च के महीने के अंदर आती है, ऐसे ही मार्च के महीने के अंदर आते हैं। इसी वजह से इसको लतीनी के अंदर जो लेंगिटन है और इंग्लिश में लेंट, इसलिए इसको लेंट सीजन का नाम दिया जाता है। अब ये लेंट सीजन का आगाज हुआ कहां से, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे वजह क्या थी, कौन ऐसा शख्स था या कौन रसूल या नबी या पैगंबर या कोई औलिया या कोई सहायक लिखने वाला जिसने इस लेंट सीजन को मुतारिफ करवाया, आखिर वो कौन था। तो आइए जरा इसकी डिटेल में भी हम चलते हैं ताकि रोजों को लेकर आपके जहन के अंदर कोई डाउट बाकी ना रह जाए। 306 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने इंग्लैंड के एक सूबे यॉर्क का कंट्रोल संभाला। सुनिए गौर से, कॉन्स्टेंटाइन अभी बादशाह नहीं बना, 306 में वो इंग्लैंड के सूबे का जनरल है और जनरल होने के नाते जब उसने इंग्लैंड के सूबे यॉर्क का कंट्रोल संभाला और गवर्नर बना, तो इस तरह से चेंजिंग आना शुरू हुई। और 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन रोम का बादशाह बन गया। 306 में इंग्लैंड के सूबे का कंट्रोल संभाला, जनरल बनकर, और 312 में वो देखते देखते पूरे रोम का वो बादशाह बन गया। और जब वो बादशाह बना तो मसीहत से वो पहले ही मुतासिर हो रहा था, मसीहत को करीब से जानने की वो कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो बादशाह बना तो कॉन्स्टेंटाइन का जो ईमान है वो मसीहत में उत्तम दर्जे पर चला है। वो मसीहत के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करने लग गया और 313 ईस्वी में उसने रोजों को बाकायदा तौर पर मसीही मजहब का हिस्सा करार दिया, उस वक्त के गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। आमीन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हैं कि रोजों का आगाज किस तरह से हुआ? 306 में कॉन्स्टेंटाइन आया गवर्नर बनकर, 312 में वो रोम का बादशाह बन गया और 313 में उसने ये लीगलाइज कर दिया कि रोजे मसीहत के अंदर जरूर हुआ करेंगे। और रोजों ने ऐसा रोम के ऊपर दबदबा डाला, ऐसा प्रेशर आया कि जो भी गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती, गवर्नमेंट की कौंसल्स होती, गवर्नमेंट के जो भी मंसूबाजात होते, तो हमेशा जो गवर्नमेंट थी वो रोजों को मद्देनजर रखते और अपने जो भी मीटिंग्स थी, कौंसिल थी, जो भी उन्होंने काम करना होता था, जो खास तौर पर गवर्नमेंट से मुंसलिक था, तो वो करते क्या, वो रोजों के दिनों के बाद करती, पहले नहीं उसके बाद करते। और 325 की जब निकाया की काउंसिल हुई जिसमें तमाम दुनिया के लिए रूल्स सेटअप किए गए, मसीही और मजहबी उलिमा एक टेबल पर बैठकर टॉक की और तमाम तरह के उन्होंने निज़ाम को अपने कंट्रोल में लिया और कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने 325 की जो निकाया की काउंसिल थी उसके अंदर ये सारे रूल्स को सेटअप किया। और गवर्नमेंट में हमेशा ये रूल रहने लगा और मसीहत में आज भी ये है कि हम रोजों के अयाम के अंदर ना तो शादी करते हैं, ये एक बड़ा जो कलीसियाई निजाम है ये उसके अंदर ये सब कुछ है, ये बाइबल की तालीम नहीं है, बाइबल इससे हटकर बात करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो इब्तदाई कलीसिया थी वो भी रोजे रखती थी, लेकिन वो रोजे किस तरह रखते थे इस बात को बड़ी समझने की जरूरत है हमें। अमाल की किताब के अंदर या उससे पहले जो लोग रोजे रखते थे या यीशु मसीह के साउथ कर जाने के बाद जब लोगों ने रोजे रखे तो उनका तरीका क्या था, आइए
आइए जरा उस पर भी गौर करते हैं। उनका जो तरीका का था, जो पुराने आहदनामा के अंदर हमें रोजे मिलते हैं, किसी ने 3 दिन का रखा, किसी ने 7 दिन का रखा, किसी ने 14 दिन का रखा, किसी ने 21 दिन का रखा, किसी ने 40 दिन का रखा और किसी ने 80 दिन का रखा। लेकिन इब्तिदाई कलीसिया जो थी वो रोजे रखती थी और वो पूरे 40 रोजों को 8 रोजों में खत्म करती थी। समझ रहे बात को? यानी वो 5 दिन का एक रोजा रखा करती थी। अभी 5 दिन का एक रोजा रखते थे और फिर इसके बाद फिर रोम ने थोड़ी सी और चीजें की, फिर 6 दिन का एक रोजा रखा जाने लगा, जो हम आज पूरी दुनिया मनाती है। लेकिन उस वक्त जब इब्तिदाई कलीसिया डेवलप हो रही थी, बढ़ रही थी, तो वो 5 दिन का एक रोजा रखते थे, 5 दिन का और 40 अय्याम के अंदर उसको कंप्लीट करते थे। लेकिन निकाया की कौंसिल के बाद ये फैसला किया गया कि अब जो है, जो खुदा का बनाया हुआ रोजा है या खुदा का बनाया हुआ जो दिन है वो 24 घंटे का है। और बाज़ औक़ात जो लोग थे वो अपने ही तरीके से रोजा एक्सरसाइज करते थे। लेकिन निकाया की कौंसिल में ही जो 325 के अंदर हुई, उसके अंदर ये कहा गया कि मसीह जो है अब वो रोजा 24 घंटे का एक्सरसाइज किया करेगी, इससे ना कम ना ज्यादा। वो आपकी पर्सनल डिमांड है, वो आपका पर्सनल क्राइटेरिया है कि आप इन अयाम को कैसे लेते हैं। शरई तौर पर आप पर रोजा फर्ज नहीं है, ये बाइबलिकल तालीम है, मैं आपको बता रहा हूं। शरई तौर पर आप पर रोजा फर्ज नहीं है क्योंकि आप शरीयत के मुताबिक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन जब आप इसको गौर से सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। शरई तौर पर आप पर रोजा फर्ज नहीं है, यानी शरीयत के आप मुताबिक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून देकर, अपना लहू बहाकर सब कुछ खत्म कर उसने शरीयत को पूरा किया और आसमान पर वो चला गया। तमाम शरीयत पूरी करके अब शरई तौर पर, शरीयत के तौर पर आप पर कोई रोजा भी फर्ज नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर अब भी रोजा एक्सरसाइज जो किया जाता है, जो यहूदी थे वो हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखते थे, और वो दिन कौन कौन सा था? पीर और जुमेरात। आई थिंक जुमेरात है या मंगल है, लेकिन सोमवार या जुमेरात है, ऐसे ही है। लेकिन मसीहत के अंदर भी 40 रोजों से हटकर लोग रोजा रखते हैं, और जो पूरी दुनिया के अंदर रखा जाता है वो ज्यादातर मेरे ख्याल में बुध का और जुमे का है, जो पूरी दुनिया के अंदर मसीह अपनी बढ़ोतरी के लिए रखते हैं। लेकिन ये आप पर फर्ज नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 रोजे रखने हैं, आपने महीने में 40 रखने हैं, आपने 50 रखने हैं, आपने 60 रखने हैं। ये आप पर फर्ज नहीं है, बिल्कुल भी खुदा ने आप पर फर्ज नहीं किया। लेकिन उसने कहा है जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब बाइबल में मना नहीं किया गया रोजे से, हमें रोजा रखना है। अभी हमें रोजा रखना है, लेकिन यहां पर फर्क हो जाता है। जब शरीयत के अंदर फकीह, फरीसी, यहूदी ये जब रोजा रखते थे तो ये रियाकारों का जैसा रोजा रखते थे। और ये करते क्या थे? ये व्हाइट कलर की जो डस्ट होती थी ये अपने माथों पर लगा लेते, अपने सर पर डाल लेते और अपने बाल अनकॉल कर देते, यानी उनको बिखेर लेते। और जहां से भी वो गुजरते लंबी लंबी पोशाकें पहनते, और जहां से भी गुजरते लोग समझते ये रोजादार है, और अपना वो इतना बिगाड़ लेते थे कि लोगों को देखकर उन पर तरस आ जाता था। इस तरह का वो रोजा रखते थे। लेकिन बाइबल ऐसे रोजे से मना करती है, क्योंकि कलाम में लिखा है जब तू रोजा रखे तो तूने
में तुझे देखता है वो तुझे रोजादार चाहेगा। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सवाल यहां पर ये पैदा होता है फिर हमारे रोजे 40 क्यों 30 क्यों नहीं? यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि हमारे रोजे 40 क्यों है, 30 क्यों नहीं? अब मैं आपको थोड़ा थियोलॉजिकल व्यू से समझाने लगा हूं, क्योंकि बुजुर्ग जब भी फैसला करते थे वो पूरी क्राइटेरिया को लेकर तब फैसला करते थे, और जब जाकर वो किसी नुक्ता पर पहुंचते और उस फैसले को कलीसिया तक पहुंचाते थे। और बाइबल मुकद्दस भी सेम ऐसी है। थियोलॉजिकल का मतलब है इल्म इलाहियात, यानी खुदा के कलाम के अंदर से बात निकाल कर उसको वजूद में लेके आना और आप तक पहुंचाना। और बुजुर्ग क्या कहते थे? बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग जो फैसले करते थे वो हमेशा इल्म इलाहियात को देखकर, खुदा के इल्म को देखकर तब फैसले करते थे। अब 40 रोजे क्यों है? बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, और आजकल तो सवालों का अंबार लगा हुआ है। कोई मुझ पे आकर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछता है, कोई मैसेंजर में पूछता है। कल एक बंदे ने मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया मुझसे बिना पूछे, और सवाल किया कि जब हम जानवर जिना करते हैं तो हम उस पर क्या पढ़े? जब जानवर जिना करते हैं तो हम उस पर क्या पढ़े? मैं कहती ऐसे सवाल तो गैर कौमें करती है, मसीह हो मुझे बताओ आपको क्यों जरूरत पड़ी ये सवाल करने की? तो कहते पादरी साहब देर करे थे जवाब दे दो, देर करे थे ना दो। मैं कहा मैं नहीं देता, मैं कहा मैं नहीं जवाब देता। ऐसी बातें लोगों के ज़हनों में है, गैर कौम के अंदर रहते हुए हम उन्हीं के जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार मुझे बंदे ने पूछा, हम पिछले दिनों ये बात जुम्मे वाले दिन में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इससे पहले भी मुझे किसी ने पूछा पादरी साहब क्या हम रोजा इफ्तार करवा सकते हैं? मैं कहा नहीं। ना हो क्यों? मैं कहा नहीं करा सकते। ये आप किससे इंस्पायर हुए हैं बताएं मुझे। क्या बाइबल में आपको ये कोई तस्वीर मिलता है कि किसी ने किसी का रोजा खुलवाया? आज कहीं मिलता है आपको? ये गैर कौमें करती है भाई। आपकी बाइबल ऐसा नहीं कहती। रोजा इंसान का और खुदा का पोशीदी मामला है। आप इसमें दखल ना करिए, ये खुदा का उसका मामला है। खुदा जाने और वो जाने, तुम्हें कुकर करेगा अपना आगे के साथ ले जाएगा, ऐसा बाइबल बिल्कुल भी नहीं कहती। सवाल वही पर स्टैंड है, 40 रोजे ही क्यों? 40 रोजे ही क्यों? आइए इल्म इलाहियात की रोशनी में इसको सीखते हैं। पुराने अहद में एक रस्म है जिसको अबरानी जुबान में मिकवह कहते हैं। जरा सुनिए इन बातों को। अच्छा, कितने बाइबल के स्टूडेंट बैठे हैं? सोच ले, मैंने अभी आपसे पूछ लेना है, मैंने अभी पूछ लेना है आपसे सवाल, अभी सुनाया और अभी पूछ लेना है। क्या कहते हैं जी पुराने अहदनामा में एक रस्म है, अभी मैंने बताया, अभी बताया। क्या कहते हैं उस रस्म को? इसका मतलब आप सीखना नहीं चाहते क्योंकि आप अपनी डायरी अपने पास नहीं रखते। अगर आप अपनी डायरी अपने पास रखें तो आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं ये तालीम देकर, आप किसी को बिब्लिकल बातें बता सकते हैं ये तालीम देकर। और जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं मुझे बताएं पहले कितनों ने ये सीखी है? बहुत थोड़े होगा, नहीं पता। तो बराए मेहरबानी इसको रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर ले आए कि जब भी आप चर्च में आए, खासतौर पर जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ अपनी डायरी जरूर रखें ताकि आप एक मुकम्मल और मैच्योर तालीम यहां से लेकर जाए। पुराने अहद में एक रस्म है जिसको पुरानी जुबान में मिकवह लिखा है। इस बात को MIKVEH मिकवह, ये तहारत की एक रस्म है। सुनिए इस बातों को बड़ी संजीदगी से। ये तहारत की एक रस्म है, यहूदियों में ये उस वक्त की जाती थी जब कोई कोढ़ का मरीज हो जाता था। सुनिए सुनिए, और कोढ़ क्या है? कोढ़ क्या है? गुनाह है। जब पुराने अहदनामा में कोई गुनाह करता तो उसका गुनाह कोढ़ की सूरत में उसके जिस्म के ऊपर भिक्षियों
घोड़ों की सूरत में बाहर निकल आता और लोगों को पता चल जाता कि इसने खुदा की हजूरी में गुनाह किया है, इसने कोई ऐसा गुनाह किया है कि खुदा इससे इतना नाखुश है कि ये बंदा कोड़ी हो गया है। और जब कोड़ी ठीक हो जाता तो उसके लिए एक अदद है जिसको 40 का फिगर कहते हैं। उसके लिए यह जरूरी था कि वो अपनी पाकीज़गी को जाहिर करे और जाहिर करने के लिए 40 दिन तक वो तहारत के अंदर रहे और तहारत के अंदर रहे और 40 बंद पानी में तहारत करे। अब ये बंद क्या है? ये यहूदियों का एक पैमाना है जिससे वो नापते हैं। एक बंद जो है वो 22 लीटर का होता है और 40 बंद का जब हम देखें तो ये तकरीबन 880 लीटर पानी बनता है। उसको ये चाहिए कि 40 दिन बाद वो 880 लीटर पानी के अंदर खुद को धोए, उसके अंदर नहाए और नहा के पाक साफ होकर वो आम लोगों में चल फिर सकता है। ये 40 का अदद जो है ये तहारत को जाहिर करता है, आपकी तहारत को जाहिर करता है। जब कोई औरत बच्चा जलती थी तो उसके लिए भी ये जरूरी था कि वो 40 दिन तहारत के अंदर रहे और 40 दिन के बाद वो पाक और साफ होकर खुदावंद की हजूरी में आए। तो 40 का जो अदद है ये तहारत यानी आपकी पाकीज़गी को शो करता है। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने या कलीसिया ने जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो रोजे हैं ये 40 दिन के होने चाहिए और 40 का जो अदद है ये मैच्योरिटी को और प्योरिटी को शो करता है। मैच्योरिटी का भी फिगर है और प्योरिटी का भी फिगर है, यानी पाकीज़गी और पुख्तगी जो है वो 40 का अदद जाहिर करता है। अब मेरे पास यहाँ पर चंद मिसालें हैं 40 के अदद को लेकर फ्रॉम द बाइबल, ना कि दुनिया की बल्कि बाइबल के अंदर जो प्रैक्टिस हो चुकी है मैं आपको वो 40 के अदद से कुछ रिलेटेड बताना चाहता हूँ। नूह का तूफान जब आया अलैश की किताब के मुताबिक तो जमीन जब गलाज़त से घिर चुकी थी, नापाक हो चुकी थी, तो कलाम में लिखा है खुदा ने आसमान के भी सोते खोले और जमीन में से भी पानी उबल कर बाहर आ गया। तो वो जो पानी है मुसलसल 40 दिन और 40 रात पूरी दुनिया के ऊपर जमीन के ऊपर बहता रहा और 40 दिन बाद ही नूह ने खिड़की खोली और फाख्ता को उड़ाया और उसने देखा कि क्या अब जमीन वो सूख चुकी है या नहीं। और दुनिया को पाक करने के लिए उस वक्त के दौर में खुदा ने 40 के अदद का इंतखाब किया, यानी तहारत खुदा ने 40 से की। कुरान 34 बाब में मूसा को 40 दिन बाद कलाम मिला, खुदा ने उसको प्योरीफाई किया, मैच्योर किया और 40 दिन जब पूरे हुए तो खुदा ने अपना जो कलाम था रिटन 10 कमांड उसके हाथ में थमा दिए, ये ले जा और मेरी कौम को जाकर ये अहकाम दे। वो भी 40 का फिगर था। और कलाम हासिल करने के लिए आपको पता है, आप जानते हैं इस बात से कि 40 दिन तक मूसा पहाड़ के ऊपर रहा और खुदा ने उसे वहां पर अपना कलाम। मूसा ने बनी इस्राएल कौम को जब मिस्र से निकाला तो वो सफर कितने दिन का था? 40 दिन का। वो सफर 40 दिन का था, लेकिन नाफरमानियों की वजह से उनके अंदर से मिस्र ना निकला और उनको याद आए, हाय वो कीड़े, हाय वो मुर्गा, हाय वो हंडिया, हाय वो मुर्गियां, हाय वो बकरे, इस तरह की बातों को लेकर खुदा ने उनको वो जो सफर 40 दिन का था 40 साल में बदल कर दिया, यानी खुदा उनकी 40 साल तक तहारत करता रहा। आमीन। बात समझ में लगी आपको? और नाफरमानी की वजह से वो 40 दिन 40 सालों के अंदर मुंतकिल हो गए। जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज, जब उन्होंने निजात का पैगाम लोगों तक पहुंचाया
تو کلام میں لکھا ہے وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. ایسے ہی شریعت کے ماتحت پیدا ہوا اور اس نے بھی جب وہ خدا کا بیٹا ہے اور تھا اور جب انسانی جسم لے کر زمین پر آیا تو اس نے بھی طہارت کے کام کو انجام دیا اور 40 دن تک روزے کے اندر ٹھہرا فقط. اب یہاں پر ایک سوال بڑا شرم لیتا ہے کہ اسرائیل کو خدا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, میرا پہلوٹا ہے, اور یسوع مسیح کو بھی خدا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا پہلوٹا ہے. بپتسمہ کے وقت آپ کو پتا ہے کہ آسمان کھلا اور آسمان سے آواز آئی تو میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اور پھر خدا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس کی سنو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اور اسرائیل میں کچھ تو کمپیریزن ہے, کچھ تو ہے. اسرائیل کو جب خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا, اپنا پہلوٹا بنایا, تو 40 دن کا جو اس کا سفر تھا نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال پر محیط ہو گیا. لیکن اس سارے پروسیس کو جب خدا کمپلیٹ کر چکا تو نئے عہد نامہ کے اندر خدا نے وہ پروسیس دوبارہ سے دہرایا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو لے کر. بیابان کے اندر یہ بیابانی لائف کو کیا کرتے تھے, یہ بڑبڑاتے تھے, کڑکڑاتے تھے, خداوند پر سوال اٹھاتے تھے, موسیٰ کی زندگی کے اوپر پریشر کرتے تھے, خداوند کو ناچیز جانتے تھے, اور بیابان کے اندر یہ اپنی زندگی کو جیسا خدا چاہتا تھا نہیں ڈال سکے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دی. لیکن یہی بیابانی سفر خداوند کے دوسرے بیٹے کے اندر بھی آیا. اس نے بھی وہ بیابانی سفر لیا, اور جب اس نے وہ سفر کیا تو جب وہ 40 دن بیابان کے اندر تھا, طہارت کے اندر تھا, تو ابلیس آ گیا اس کے پاس. ان کے پاس ابلیس آیا, بچڑا بنا لیا. لیکن یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا تو کیا کہا اس نے؟ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. لیکن پہلا بیٹا, پہلوٹا بیٹا اسرائیل وہ گر گیا, لیکن یسوع مسیح نے اٹھا کر دیا. ہاللیلویا, اٹھا کر کیا. اب روزے کو لے کر ہمارے مختلف خیالات ہیں, مختلف تصورات ہیں. آپ لوگ تھک نہیں گئے؟ ابھی ہے 20-25 منٹ شاید لگ جائے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک میچور تعلیم دے سکوں تاکہ آپ کسی کو بتائیں تو وہ دیکھیں کہ نہیں یہ واقعی ایک اچھی تعلیم ہے اور بائبل مقدس کے مطابق ہے. اب روزے کو لے کر لوگوں کے مختلف تصورات ہیں, اور میں آپ کو 3 طرح کے تصورات بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم روزہ رکھتے اور ٹھہر سکتے ہیں. پہلی بات, روزہ خدا اور انسان کے درمیان سنجیدہ رابطہ ہے. آمین. انسان اور خدا کے درمیان سنجیدہ رابطہ ہے. دوسری بات, روزہ خدا کے ساتھ انسان کی وفاداری کا ثبوت ہے. جہاں کہیں بھی آپ خود کو کمزور فیل کریں, جہاں کہیں بھی ڈرے سہمے ہوئے فیل کریں, پاک روح سے الگ فیل کریں, تو آپ روزے میں ٹھہریے. آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ان 40 روزوں سے ہٹ کر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. بائبل مقدس آپ پر کوئی بھی فتویٰ نہیں ہے. تیسری بات, روزہ خدا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ میں خدا کی حضوری میں ہوں. آمین. میں خدا کی حضوری میں ہوں. اور روزے کے اندر جو 7 قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو وہ روزے کی پریکٹس کس طرح کیا کرتے تھے اور آپ پر کیا فرض ہے. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 7 اقسام ہیں. پہلی بات, شرعی روزہ, شریعت کے مطابق روزہ جو آپ پر فرض نہیں ہے. احبار اس کا 19ویں آیت میں یہ روزہ رکھا گیا. دوسرا روزہ یادگاری کا روزہ, یہ جب مصر سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالا
تو وہ اس یادگاری کو دہراتے ہوئے یہ روزہ رکھتے ہیں. اور اس کا ذکر جو ہے ذکریہ کی کتاب اس کا 8 باب اور 19ویں آیت میں ہے. تیسرا روزہ وقتی روزہ، جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور دیکھیں پرانے عہد نامہ میں لوگوں نے یہ پریکٹس کی، 3 دن 7 دن 14 دن 21 دن 40 دن کا 2 دفعہ 40 دن کا پھر ایلیا نے بھی رکھا. تو یہ ان کی اپنی ان کی ڈیمانڈ تھی. جنہوں نے 3 دن کا رکھا، جنہوں نے 7 دن کا رکھا، جنہوں نے 21 دن کا رکھا، جنہوں نے 14 دن کا رکھا، یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی. اور اس روزے پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے. آپ اکیلے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ جماعتی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں. آمین. تیسرا روزہ ہے جس کو طبعی روزہ کہتے ہیں، صحت کے لیے، صحت کا روزہ فار دی ہیلتھ. بعض اوقات لوگ روزہ رکھ کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کاج نپٹاتے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن روزے کا جو کنسرن ہے وہ ریاضت سے ہے. روزہ ریاضت مانگتا ہے، روزہ اسٹڈی مانگتا ہے، روزہ آپ کے گھٹنے زمین پر ٹیکنا مانگتا ہے، روزہ آپ کی ڈاک کو زمین پر لگانا مانگتا ہے، روزہ آپ کے اس ماتھے کو زمین پر لگانا چاہتا ہے. اور روزہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں پوری طرح پر آئے اور آپ کی زندگی پر جو کنٹرول ہے وہ خدا کا. آمین. لیکن بعض کا لوگ روزہ رکھ کر دعا نہیں کرتے اور صرف وہ کرتے کیا ہے، اپنی فزیکلی ہیلتھ کو ٹھیک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سمارٹ ہونے کے چکروں میں میرا روزہ ہے. لیکن اس کی آپ کو کوئی برکت نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ کوئی نہیں. یہ آپ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ 6 پیک بنانے کے چکر میں یا پہلے اسمارٹ ہونے کے چکر میں وہ رکھتی ہے. اس کا بائبل سے کوئی کنسرن نہیں ہے. 5واں روزہ جو ہے وہ ریاکار روزہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فقیر یہودی فریسی روزہ رکھتے تو کیا کرتے تھے، باہر میں کھیل لیتے، وائٹ کلر کی ایش اپنے ماتھوں پر لگا لیتے اور کرتے کیا، لوگوں کو بتاتے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، اور لوگوں کو یہ بتا کر اپنی روحانیت کھو بیٹھتے. اس کو ریاکار روزہ کہتے ہیں. یہ بائبل مقدس اس کے خلاف ہے. 6واں روزہ جو ہے وہ غلط یا بے فائدہ، جس کا ذکر عیسائیہ 58 باب 2 سے 4 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر عیسائی نے کہا تم تو روزہ اس لیے رکھتے ہو تاکہ رگڑا جھگڑا کرو، لڑائیاں کرو، شرارتیں مکیاں مارو. اور اس کی بائبل میں سختی سے ممانعت ہے. یہ روزہ نہیں ہے. اور 7واں روزہ جس کو مسیح روزہ کہتے ہیں. ہاللیلویا. مسیح روزہ کہتے ہیں انسان اپنی کنیکشن کو بہتر بنانے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کے لیے رکھتا ہے. پریز گاڈ. اپنی کنیکشن کو، اپنے رابطہ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے مسیح ہیں وہ شکر گزاری پر دور رکھتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر اپنا تاکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے بس 10 منٹ اور دے دے آئٹم کرتا ہوں. سو اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم پر 40 روزے فرض کیے گئے. کس کس کو یہ پتا ہے اور نہیں پتا؟ کون کہتا ہے 40 روزے فرض کیے گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی نہیں ہے. روزے ہم پر فرض نہیں کیے گئے، روزے ہم پر قرض کیے گئے ہیں. آمین. قرض کیے گئے ہیں اور وہ قرض جتنا ہو سکے ان دنوں میں روزے رکھ کے اتار دیجیے. اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی. صلیب کے اوپر ہماری بدکاریاں، ایبسویاں، لڑائی جھگڑے، بغض، ہر ایک گندی تاثیر اور یسوع مسیح نے اس صلیب کے اوپر ٹانگ دی اور اپنا خون دے کر ہم پر یہ قرض کر دیا ہے. اور اب آپ پر مسیح ہو یہ قرض ہے کہ روزے رکھ کر اس قرض کو اتاریے. آمین. روزے رکھ کر اس قرض کو اتاریے. کیونکہ خدا نے آپ سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع کے اندر ہے. اور یہ روزے اب آپ پر قرض ہے. اتاریے وہ قرض کو.
मुझे, और ये माफी ऐसे नहीं मिली, अपने इकलौते बेटे का खून बहाकर आपको ये मिली है। उतारिए अब ये कर्ज इन 40 दिनों में भी, इससे हटकर भी रखिए, खुदा आपको बरकत देगा। हम मकरूज हैं, कर्जदार हैं, खुदा के हम कर्जदार हैं, और ये वक्त है, बड़ा अच्छा वक्त है, आप इन रोजों को रखिए। हम इन रोजों के खिलाफ नहीं है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, बिल्कुल भी हम खिलाफ नहीं है। आप ये 40 भी रखें और खुदा आपको तौफीक दे तो इससे हटकर भी रखें, ताकि आपकी रूहानियत के ऊपर में सवाल ना। आमीन। आखिरी सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि रोजा कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए। पहली बात, मसीहत में शरीयत नहीं है। सुन लीजिए गौर से, मसीहत में शरीयत नहीं है, मसीहत में मैच्योरिटी है। आमीन। मैच्योरिटी है। आप महसूस करते हैं कि मैं कमजोर हूं, आप रोजा रखिए। आप महसूस करते हैं मैं बिल्कुल गुलाम से हट चुका हूं, आप रोजा रखिए। और मसीहत का जो रोजा है, जो पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, वो 24 घंटे। आमीन। लेकिन एक मैं और आपको बात बता दूं, अगर आप 24 घंटे से कम रखते हैं तो इस पर बाइबल फतवा नहीं देती। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल इस पर फतवा नहीं देती। आप रख सकते हैं, लेकिन ये आपका जाती फेल है, आपका जाती कंसर्न है, बाइबल इस पर नहीं आपको कहती। लेकिन जो मैच्योर रोजा है वो 24 आवर्स का है। अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मैं अब गुनाह के हाथों नहीं बिका हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं खुदावंद की पाक रसूली में आऊं, तो आप रोजे रखिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मुझे उस किताब का भी नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें शरीयत के अंदर ये लिखा है कि सूरज गरूब होने से सूरज गरूब होने तक रोजा है, यानी शाम 6 बजे तकरीबन मगरिब हो जाती है और सूरज डूब जाता है। 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे तक मसीहत का रोजा ये है। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़ी वाज़ेह तौर पर तालीम दी और कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे। आमीन। कोई सवाल आपके जहन में आता हो उससे कर दीजिए। इस मजमून को लेकर, टॉपिक को लेकर कोई सवाल आपके जहन में है, आप कर सकते हैं। कहीं से कुछ समझ आया हो, आप तब भी दोबारा पूछ सकते हैं। एनीवन? नो वन? फिर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद तरीके से कुछ गाएंगे, रब के दर में शुक्रगुजार करेंगे। जो बड़ा रहीम है वो कादिर है, और उसने आज आप सबों की जिंदगी में अपने कलाम को भेजा है ताकि आप कलाम के कलाम में से सीख सकें। हालेलुया। कलाम के शुक्रगुजार करते हैं आज के कलाम के लिए। कलाम जो कुछ हमने तेरे कलाम में से सुना, सीखा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद हम इस पर अमल करने वाले बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आइए मेरे अजीजों, अब वक्त है हम उस यादगारी की तरफ बढ़ें जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब कभी खाओ या पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को 11वें बाब उसकी 23वीं आयत में लिखते हुए ये फरमाता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची
और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र कर तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया आहद है, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक बना। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। आइए आंखों को बंद करेंगे। हम आज इस रोटी के लिए, इस शीरे के लिए खुदावंद से बरकत को मांगेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर दुआ मांगेंगे। ऐ असली अजीम जिंदा जलाली और पाक खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज महीने के पहले एतवार में तूने हमको ये मौका दिया कि हम प्यारे बादशाह तेरे बदन और खून के अंदर शमूलियत अख्तियार कर सके। है प्यारे खुदावंद, तूने आखिरी फसह के मौका पर रोटी ली, उसको बरकत दी और अपने शागिर्दों को देता गया और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसके बाद आपने वो ताजा शीरे अंगूर का रस लिया, उसको बरकत दी, अपने शागिर्दों को देता गया और कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब कभी खाओ या पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। आज है मेरे खुदावंद, हम उस यादगिरी को मनाने को है। मैं तेरा कादिम होते हुए तेरा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में इस रोटी को और इस शीरे को बरकत देता हूँ और ईमान रखता हूँ कि ये प्यारे खुदावंद तेरे बेटे यीशु के बदन और खून का हिस्सा बन चुकी है। प्यारे खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम प्यारे खुदावंद इसी तरह तेरी पाक हुज़ूरी में आते हुए तेरे बदन और खून में शमूलियत अख्तियार करते हैं, मसीह यीशु के नाम में।